Good morning, students. Welcome to your physics class. Students, this is our last topic of electric potential and flux. This is the last application of Gauss theorem, that is electric field intensity due to a uniformly thin spherical shell. Thin spherical shell, hollow sphere and solid sphere. There are two cases. First one is the hollow sphere, that is a thin spherical shell, and second one is a solid sphere. Okay. So today we will discuss these two topics. So first point is at a point outside a spherical shell. So let us consider, first of all, let us consider a thin spherical shell of radius capital R. स्फेरिकल शेल ले ली, बीच में से जो हॉलो होगी वो स्फेरिकल शेल लेनी है आपने, विद सेंटर O, कैपिटल R इज अ रेडियस. लेट चार्ज पॉजिटिव क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ शेल. इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लेट P इज ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. अब P पॉइंट कहाँ पर लेना है, जो उसकी गॉसियन सरफेस बनेगी. इस जो चार्ज हमने लिया है पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो किया हुआ है, इसका जो इफेक्ट रहेगा वो यहाँ तक रहेगा और इसकी बोलेंगे हम गॉसियन सरफेस. सो लेट अस सपोज ए पॉइंट P एट द गॉसियन सरफेस. P is a point on the Gaussian surface. So let us suppose a small surface ds, direction of ds is same as that of electric field. Okay, so point P is at distance small r from center O. Capital R is a distance, is a radius of spherical shell, and small r is a distance from point P where the Gaussian surface is formed. Okay, so let small r is greater than capital R. Draw the Gaussian surface at point P. यहाँ से Gaussian surface draw कर देनी है. Now according to Gauss theorem, Gauss theorem के अकॉर्डिंग क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इसकी अगर दोनों की डायरेक्शन देखी जाए, E वेक्टर की डायरेक्शन ds की वेक्टर डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा. ओके, बिकॉज दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. So E ds cos of 0 degree is equal to q upon epsilon naught. So cos 0 is equal to 1. Taking E outside because electric field is constant throughout the surface. So E taking outside, here we get ds is equal to q upon epsilon naught. So ds means surface area of small surface, and integral of ds means surface area of whole Gaussian surface. So whole Gaussian surface का surface area क्या आएगा, this is a sphere. सो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर. इस चीज को ध्यान में रखना है, रेडियस आपने गॉसियन सरफेस तक लेनी है, ये वाली स्फेरिकल सर्किल लेनी है. गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. सो जो रेडियस लेंगे वो ये लेंगे, स्मॉल आर. ओके, इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. आ गया पहले एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. Now second point is if a point P is placed at this surface. अगर P पॉइंट यहाँ पर लेते हैं तो स्मॉल r भी यहाँ पे आएगा, P पॉइंट यहाँ पे आ गया. जो आप स्फेरिकल शेल ds लेंगे इसकी डायरेक्शन भी ये आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये आ गई. सो इन दिस केस क्या बनेगा, स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R. सो वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. So only difference between these two is small and capital R. In this case, small r is greater than capital R. In this case, small r is equal to capital R. Now third case is, let a point P inside a spherical shell at a distance small r dash from the center. अब ये ले लिया हमने, इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस ये आएगा. अब इसमें अब पॉइंट हमने लेना P इनसाइड द स्फेरिकल शेल. तो ये पॉइंट P आ जाएगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ये ds सरफेस एरिया की डायरेक्शन आ गई. So P point up inside the spherical shell area, let R dash is a distance from O to P. OP is equal to R dash and R dash is less than capital R. Okay. So in this case, according to Gauss theorem, E vector dot ds vector is equal to q upon epsilon naught. But there is no charge. There is no charge inside the Gaussian surface. So Q is equal to 0. हॉलो स्फेरिकल शेल है, बीच की खाली होगी तो ये हमें कोई चार्ज नहीं होगा. इट मीन्स Q is equal to 0. So E vector dot ds vector is equal to 0.
So it means electric field in this case is equal to 0. So as if we draw a graph for three different cases, so we get the output as shown in graph. So इस टाइप की आउटपुट आपके पास निकलेगी. ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेम कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल. अब नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पे क्या आएगा आपके पास, इसमें लेके चलते हैं. कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, सॉरी स्फेरिकल शेल नहीं है, दिस इज ए सॉलिड स्फेयर, कंप्लीट सॉलिड भरा हुआ होगा पूरी तरह से, ऑफ रेडियस कैपिटल आर. लेट ए पॉजिटिव क्यू चार्ज बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट. लेट्स रो विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब. आर क्यूब लेना है, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस होगी वो आपने कैपिटल आर लेनी है. नाउ इन दिस केस अगेन यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस आएगा एट ए पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर. सो दिस केस इज सेम एज दैट ऑफ स्फेरिकल शेल. सो ये आएगा आपके पास ई डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ई डी एस दोनों के डायरेक्शन सेम है, सो कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा एंगल दोनों के बीच में. ई टेकिंग आउट साइड, यहाँ पर बचेगा डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ई इंटू यहाँ पर जो आपके पास आएगी रेडियस. देखो अब ये पॉइंट जो आपने जो बाहर जो पॉइंट लिया पी पॉइंट, यहाँ तक रेडियस जो है स्मॉल आर है. तो हमने यहाँ पर सरफेस एरिया जो लेना है वो लेना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो ई इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square. So it means this is the electric field of solid sphere and this is same as that of spherical shell. So this case is same as that of spherical shell. Again, case second. At a point on the surface of solid sphere. So again in this case, small r is equal to capital R. So here E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. This is again same as that of spherical shell. So these two cases are same as that of spherical shell. ठीक है. और थर्ड पॉइंट जो है वो टोटली डिफरेंट आएगा. एट ए पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. अब ये पॉइंट आपका डिफरेंट आएगा. सो लेट पी बी ए पॉइंट इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर. जैसे हमने पहले लिया था, ये गॉसियन सरफेस ले ली, सॉरी हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया हैविंग रेडियस कैपिटल आर. तो एक स्मॉल गॉसियन सरफेस लेंगे अंदर और पी पॉइंट इसके ऊपर लेंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, डी एस से आपके पास डायरेक्शन ये आ जाएगी. तो उस केस में यहाँ पर सपोज करते हैं इस पॉइंट के ऊपर क्यू डैश चार्ज है. सो क्यू डैश चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर. स्फेरिकल शेल में कोई चार्ज नहीं था तो उस केस में 0 आ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे हमने चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना आएगा, वो चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर वो आएगा आपके पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर into 4/3 pi r cube. So this will be equal to q upon 4/3 pi r cube into 4/3 pi smaller q. ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू. अब इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो गॉस थ्योरम क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं. सो वी गेट द रिजल्ट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्यू डैश लेना अब यहाँ पे आएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री. दिस इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी क्यू आर स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे इंटू आर क्यू. ये वैल्यू हो जाएगी. सो टेकिंग ई आउटसाइड, यहाँ बचेगा डी एस इज इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू. अब ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू. सो ई इज इक्वल टू क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो जाएगा आर से आर. दिस विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू. So this will be your required electric. So students, this is all about our electric potential and flux. So our chapter is finished. Now in next lecture we will discuss the capacitance. Okay, so I hope you all understand this topic. Thank you very much.